Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with a chapter on alternating currents. आज हम करने वाले हैं AC पूरा चैप्टर करेंगे start to end, theory, concepts and lots of PYQs. So I hope you are as excited as I am. Let's go. So सबसे पहले we have an alternating voltage supply which is denoted by this. इसका मतलब क्या कि suppose I connect it to a resistance. So this produces a potential difference or a voltage of E naught sine omega t, where E naught is called the amplitude, मतलब the peak value of the voltage supply. Peak value मतलब maximum value. ठीक है. Omega is the angular frequency. तो ये alternating है because we say it's an alternating voltage supply because इसका polarity change हो रहा है. Polarity मतलब sign change हो रहा है. कि अगर ये मेरे पास प्लस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम पीरियड साइन ओमेगा टी पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा देन इट विल चेंज द साइन सो द पोलैरिटी ऑफ दिस वोल्टेज सप्लाई विल चेंज. ठीक है. अनलाइक अ डीसी इज डायरेक्ट करंट जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में करते हैं. नॉर्मल बैटरी लगाते हैं ऐसे. तो दिस इज माई डीसी वोल्टेज सप्लाई जिसमें पोलैरिटी स्टेज द सेम, इट डजंट चेंज. Here it keeps periodically changing. Okay. इसको कैसे प्रैक्टिकली जनरेट करेंगे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में देखा है विद अ रोटेटिंग कॉइल. ठीक है. तो वहां पे फैराडेज लॉ से वी हैव फाउंड आउट दिस फॉर्म ऑफ द वोल्टेज सप्लाई. एनीवे, सो आई हैव अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू दिस वोल्टेज सप्लाई. व्हाट विल हैपन इज दैट देयर विल बी अ करंट कितना हो जाएगा द वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट. सो आई कैन राइट दिस एज I naught साइन ओमेगा टी. ठीक है. अब यहां पर आई हैव आई नॉट इज व्हाट वी विल कॉल द एम्पलीट्यूड और द पीक वैल्यू ऑफ करंट. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट. ठीक है. वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड आरएमएस. तो आरएमएस का मतलब क्या है? आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर. मतलब पहले हम स्क्वायर करते फिर मीन लेते फिर रूट लेते. ठीक है. इसका मतलब क्या? पहले मैं करंट को स्क्वायर करूंगा फिर मीन लूंगा. सो आई विल हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द करंट ओवर वन टाइम पीरियड. उसको मैं इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूं एंड देन रूट. ओके. दिस इज द मीनिंग ऑफ आरएमएस. रूट मीन स्क्वायर. उल्टा करना है. पहले स्क्वायर करना है करंट को फिर मीन लेना है फिर रूट. अभी मीन लेना है मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन टेकिंग द एवरेज वैल्यू? सो आई स्क्वायर्ड is I naught square sin square omega t. So average of I square would be I naught square तो constant है. Average of sin square omega t over one time period. ठीक है. So it turns out कि over one time period sin square omega t and cos square omega t दोनों का जो average है that comes out to be equal to half. ये अपने को याद रखना है. sin square omega t plus cos square omega t 1 है. ठीक है. and दोनों का individual average half है. Alright. तो ये अपने को याद रखना है. So therefore this would become I naught square by 2 and therefore I RMS would become उसका square root I naught by root 2. ठीक है. where I naught is how much? E naught by R. So any RMS value अगर मैं if I ask you E RMS, if you have a sine function the RMS value will be the peak value which is E naught divided by root 2. peak value E naught divided by root 2 is the RMS value. ये अपने को याद रखना है. ओके. तो ये मेरा करंट आ जाएगा. देख लो. Let's look at a very simple question from JEE 2025. An AC current is given by I is equal to 100 root 2 sin 100 pi t ampere. ठीक है. पूछा गया था RMS value of the current and frequency. Hertz में frequency पूछा गया था. It's a very straightforward question because हमने already देख लिया कि RMS value क्या होता है. जो भी एम्पलीट्यूड है उसको हम root 2 से डिवाइड कर देंगे. So current का RMS value would be 100 root 2 divided by root 2. So that is nothing but 100 ampere. That's it. And frequency ये जो है अंदर this is omega, angular frequency. So we know angular frequency is 2 pi times frequency, correct? So frequency would be omega by 2 pi. तो ये कितना बन जाएगा 100 pi divided by 2 pi. So this will become 50 hertz. All right. देख लो. Let's look at a question from JEE 2024.
वोल्टेज सप्लाई 220 साइन 100 पाई टी इज अप्लाइड टू रेजिस्टिव लोड ऑफ 50 ओम्स। मतलब सिर्फ एक रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई अप्लाई किया गया है। द टाइम फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। सबसे पहले तो ये 50 ओम है एंड दिस इज 220 साइन 100 पाई टी। इसका मतलब व्हेन वी कंपेयर इट टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, 220 इज ई नॉट एंड ओमेगा इज 100 पाई, करेक्ट। तो मेरा करंट कितना आ जाएगा? वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो 220 डिवाइडेड बाय 50, 22 by 5 साइन ऑफ 100 पाई टी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब पहुंचेगा? मैक्सिमम वैल्यू is 22 by 5 will occur at 100 pi t is equal to pi by 2, करेक्ट। बिकॉज बोला हुआ है हाफ ऑफ पीक टू पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू जब पहुंचेगा तब साइन फंक्शन 1 होना चाहिए, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 by 200 सेकेंड्स, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 5 मिली सेकेंड्स, है ना। 1000 डिवाइड बाय 200 मिली सेकेंड्स बोला 10⁻³ सेकेंड्स। And Imax by 2, Imax is 22 by 5, ठीक है। So Imax by 2 would be Imax sin omega t, तो sin omega t equal to half, well I'm trying to find the time at which the current is Imax by 2, तो omega t कितना बन जाएगा? pi by 6, so t would be pi by 6 omega, तो ये बन जाएगा pi by 6 और omega का वैल्यू कितना? 100 pi, तो 1 by 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 by 6, मतलब 5 by 3 मिली सेकेंड्स। आई कैन राइट दिस एज 1000 by 600 मिली सेकेंड्स, करेक्ट। तो 10 by 6 मतलब 5 by 3 मिली सेकेंड्स। तो टाइम टेकन फ्रॉम हाफ वैल्यू टू मैक्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 minus 5 by 3 बन जाएगा 10 by 3 विच इज अराउंड 3.33 मिली सेकेंड्स। So my answer would be this. देख लो। Now let's look at a capacitor connected across an alternating voltage supply. तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? CE होता है, C into capacitance into the potential difference, capacitance into the voltage, so C into E naught sin omega t will be my charge. But often I want the current, so that will be dq by dt. तो ये बन जाएगा omega C E naught sin का डेरिवेटिव cos, correct? And therefore what I can do is I can write this in terms of, जैसे हमने रेजिस्टर के केस में करंट लिखा था, रेजिस्टर के केस में I had written my current as I naught sin omega t, इस फॉर्म में लिखा था, where I naught was E naught by R, correct? So I want to write it in that form. So I want to write E naught by something, and by something would be 1 by omega c, correct? ये omega c naught है, तो उसको मैं 1 by omega c डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, एंड इसको मैं मुझे साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। I'll tell you why. cos theta is sin of omega t plus cos theta is sin theta plus pi by 2, ये तो पता है अपने को। So I can write it this way. So we define something called capacitive reactance, उसको xc बोलते हैं, which is 1 over omega c. So my current becomes E naught by xc sin of omega t plus pi by 2. So ये xc जो है that is सिमिलर लुकिंग टू रेजिस्टेंस, तो उसका SI यूनिट्स भी रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा, विच इज ओम्स, ठीक है। सो जस्ट टू मैथमेटिकली मेक दिस लुक लाइक दिस, जो रेजिस्टर के केस में था, E naught by something, E naught by something, that something is now called the capacitive reactance. बट यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी था, यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो ये जो साइन के अंदर चीज होता है उसको फेज बोलते हैं, ठीक है। सो वी से that the current across a capacitor leads the voltage across the capacitor by pi by 2, because voltage across the capacitor कितना है? sin omega t, उसका फेज कितना है? omega t, साइन के अंदर जो बोलते हैं वो फेज, तो वोल्टेज का फेज कितना है? omega t, तो उसके अक्रॉस जो करंट होगा उसका फेज कितना है? omega t plus pi by 2, तो बोलते हैं कि करंट का फेज इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ द वोल्टेज का फेज। इट्स अ वे ऑफ सेइंग समथिंग दैट इज मैथमेटिकल, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज हम याद रखेंगे। देख लो, लेट्स टॉक क्वेश्चन दैट केम इन 2024
an EMF 110 root 2 sin 100t volts is applied to a capacitor of 2 microfarad. The RMS current is how much? तो मुझे पता है करंट इन द कैपेसिटर कितना होता है, E नॉट बाय एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट. सो E नॉट का मतलब कितना है, 110 रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स सी. अब एक्स सी कितना है, 1 बाय ओमेगा सी, है कि नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो 1 बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है, 100, एंड कैपेसिटर कितना है, 2 माइक्रोफैराड. सो 2 इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁴ डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो XC का वैल्यू 10⁴ डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा, है कि नहीं. सो आई कैन राइट दिस एज 22 डिवाइडेड बाय 10⁻3, 22 रूट 2 डिवाइडेड बाय 10⁻3. ये मेरा I नॉट बन जाएगा, E नॉट बाय XC. राइट. सो RMS कितना हो जाएगा, I नॉट डिवाइड बाय रूट 2, so 22 by 10⁻3 एम्पियर, which is 22 मिली एम्पियर. So my answer would be 22. देख लो. Now let's talk about an inductor. अगर एक इंडक्टर कनेक्टेड है तो वोल्टेज सोर्स, तो कितना करंट होगा. So I can say E नॉट sin ओमेगा t minus L di by dt should be 0. मतलब this should be equal to L di by dt. राइट. दिस लूप लॉ लिखा है, E नॉट sin ओमेगा t minus L di by dt should be 0. ठीक है. सो इसमें करंट कम्स आउट टू बी, अगेन आई कैन राइट इट दिस वे, I नॉट बाय सम, सॉरी E नॉट बाय समथिंग इनटू साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. चेक कर लो इसको, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यू कैन चेक दैट दिस विल सेटिस्फाई दिस, प्रोवाइडेड XL का वैल्यू इज ओमेगा L. ठीक है. so what I want you to do is just substitute this I, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डालो, it will satisfy this equation. So XL का वैल्यू, this is, you can imagine this is called inductive reactance. इसका वैल्यू बस ओमेगा L. ठीक है. यहां पर द करंट का फेज इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो इस केस में हम बोलेंगे कि करंट इन द इंडक्टर लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज सप्लाई. लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज सप्लाई मतलब, और या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. इसका मतलब क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मतलब ये साइन ओमेगा टी इज द वोल्टेज, सो उसका फेज इज ओमेगा टी, इसका फेज इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ठीक है. ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ ऑल 3 एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. ऑल 3 मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. तो अगर मेरे पास सारे हैं इन सीरीज, इसको RLC सीरीज भी बोलते हैं. So now I want to find the current as a function of time. So it turns out कि जो current जाएगा इस circuit में, that is some I naught into sine of omega t minus phi. Where no देखो, जब सिर्फ resistor था तो phi का वैल्यू 0 था because current was only I naught sin omega t. जब capacitor था तब current was sin of omega t plus pi by 2. एन इंडक्टर था तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. अब तीनों साथ में है तो कोई एक जनरल फाई का वैल्यू. ठीक है. मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, प्लस भी लिख सकते हैं, बट जस्ट फॉर कन्वेंशन से मैंने माइनस यहाँ पे चूज किया. फाई इज सम कांस्टेंट. फाई इटसेल्फ कैन बी नेगेटिव आल्सो, वी विल सी. सो आई नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई नॉट बाय जेड. जब सिर्फ रेजिस्टर था तो करंट का पीक वैल्यू क्या था, ई नॉट बाय आर. जब सिर्फ कैपेसिटर था तो करंट का पीक वैल्यू क्या था, ई नॉट डिवाइडेड बाय XC, which was the capacitive reactance, and then similarly inductance. But in general तीनों है, then I naught comes out to be equal to E naught by Z, where Z is called the impedance, and it is equal to R square plus XL minus XC the whole square. So this is called the impedance. ठीक है. What is XL? XL was omega L, and what was XC? 1 over omega C. And ये जो phi का value है, that comes out to be tan phi is equal to XL minus XC by R. Alright. Now ये जो चीज है ये अपन याद रखेंगे. All of this we are going to remember the impedance and ये phi का value. ठीक है. So current is I naught sin of omega t minus phi. Tan phi is given by XL minus XC by R, and Z is equal to root of R square plus XL minus XC the whole square. इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका डेरिवेशन क्या है? Basically it's
it's pretty straightforward कि you're going to write the loop law, you're going to write E naught sin omega t, then इसके across जाओगे तो minus IR, then inductor के across minus L di by dt minus Q by C is 0. Then you need to solve the differential equation जिसका solution वगैरह ये आता है. तो we are not obviously going to do that. You can confirm by substituting this, and you can confirm that this will satisfy, provided Z and phi का value are given by these expressions. ठीक है. Alright, तो ये मेरा RLC जनरल सर्किट हो गया. एंड जो भी हमने किया प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट्स अभी तक जो किया, दे आर बेसिकली स्पेशल केसेस ऑफ दिस सिचुएशन. सो लेट्स जस्ट एनालाइज दिस लिटिल बिट कि मेरे पास यहाँ पर जो Z का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, जो आई नॉट है, I naught is E naught by Z. So अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूं तो that will come out to be R square plus omega L minus 1 over omega C the whole square. ठीक है. Now if you plot current versus omega, the peak value I naught versus omega अगर मैं प्लॉट करूं तो ओमेगा को अगर मैं वेरिएबल मानूं तो I naught versus अगर ओमेगा प्लॉट करूं, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, जरा बताओ ओमेगा इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा? जैसे ही ओमेगा 0 होता है 1 ओवर ओमेगा से इन्फिनिटी हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, पीक वैल्यू. एंड ओमेगा इन्फिनिटी अगर होगा तो भी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन के पीक वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा. सो 0 से शुरू करेगा, 0 पे जाएगा तो कहीं तो एक मैक्सिमा आएगा. ठीक है. तो ये आई नॉट का मैक्स वैल्यू. सो जो पीक वैल्यू आता है, जो मैक्सिमम वैल्यू आता है पीक करंट का, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं. ठीक है. वो कितने ओमेगा पे आएगा? यू शुड बी एबल टू सी दैट डायरेक्टली, नो नीड फॉर कैलकुलस कि इफ आई वांट आई नॉट टू बी मैक्सिमम, ओमेगा इज माय वेरिएबल, इफ आई वांट आई नॉट टू बी मैक्सिमम, देन द डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम, एंड डिनोमिनेटर हैज द स्क्वायर टर्म, पॉजिटिव टर्म एंड अनदर पॉजिटिव टर्म. सो दिस, इसका मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा? 0, राइट. सो omega L is equal to 1 over omega C. Basically, I am equating XL and XC. So when XL is equal to XC, you will get the maximum value of the peak. तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 over root LC. तो इसको ओमेगा नॉट बोल देंगे. This is called the resonant frequency, resonant angular frequency. ठीक है, ये हम याद रखेंगे. तो इस चीज पे ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 over root LC पे जो इम्पीडेंस है that is at its minimum, and therefore the peak value is at its maximum. ठीक है. So this is called omega. This is called resonant angular frequency. Resonant frequency will be omega naught by 2 pi. ठीक है. Frequency is omega by 2 pi. Frequency is angular frequency divided by 2 pi. ठीक है. All right. देख लो. इस ग्राफ को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं. द पीक वैल्यू वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वी सॉ कि एक मैक्सिमा आता है, एंड ये जो पॉइंट है इसको दिस अकर्स एट ओमेगा नॉट वर्सेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, वी से कि द सर्किट इज इन रेजोनेंस. ठीक है. एंड अगर एंड वी से कि द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव. ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट विच वाज 1 over root LC, इंपीडेंस का वैल्यू सिंपली R था बिकॉज XL एंड XC बिकेम इक्वल. तो इंपीडेंस का जो फॉर्मूला था मेरे पास, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, उसमें XL और XC इक्वल होके Z का वैल्यू सिर्फ R बचता है. ठीक है. तो वी से सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव. अगर ओमेगा इज लेसर देन ओमेगा नॉट, in that case, see, omega equal to omega naught पे XL and XC are equal. XL क्या था? Omega. It was directly proportional to omega, and XC was 1 over omega. See, it was inversely proportional to omega. तो अगर मैंने ओमेगा को कम कर दिया इससे, तो XC बढ़ जाएगा, XL कम हो जाएगा, right? So in this case, XC would be greater than XL, and we say that the circuit is capacitive. And omega greater than omega naught, you can imagine क्या कहेंगे? ये वाला केस हो जाएगा XL is greater than XC because ओमेगा को बढ़ा दिया, and we will say that my circuit is inductive. तो ये थोड़ा पता होना चाहिए. ठीक है.
देख लो. Let's look at a question that came in Jan 2025. In an LCR series circuit, current amplitude is I0 at resonance. If the resistance is doubled, then the new current amplitude कितना होगा at resonance? Okay. तो सबसे पहले तो at resonance XL and XC का वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो इम्पीडेंस का वैल्यू जो था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा R. तो देयरफॉर करंट का जो एम्पलीट्यूड है I0 बोलता हूँ, that is nothing but E0 by Z. So it will simply become E0 by R because the impedance is equal to resistance at resonance. Okay, तो रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट कितना बन जाएगा? हाफ. सो दिस विल बिकम I0 by 2. ओके, देखो अब थोड़ा फेज की बात करते हैं, फेज डायग्राम्स की बात करते हैं. सो वी टॉक अबाउट फेजर. व्हाट इज अ फेजर? एंड वी हैव सीन दिस इन वेव्स, बट लेट्स क्विकली रिकैप. फेजर का मतलब क्या होता है? Phasor is an imaginary vector whose y component is the actual value of whatever quantity जो हम represent करना चाहते हैं. For example, मेरे पास यहाँ पे suppose current है sin of omega t minus phi. This was the current that we got in the RLC series, right? Where tan phi is given by XL minus XC by R. So इसका अगर मैं phasor draw करना चाहूँ, so it will be a vector, imaginary vector whose y component is this. तो एक imaginary vector जिसका magnitude I0 होगा, amplitude I0 होगा, तो magnitude vector का I0 है, and x axis के साथ angle कितना हो जाएगा? omega t minus phi. So this is the phasor. उसका y component कितना हो जाएगा? I0 sin of omega t minus phi, which is the actual current that we look at in the RLC series circuit. ठीक है, तो ये मेरा current का phasor बन गया. Now ये phasor क्यों important है? Because it gives us a nice way of visualization of कौन सा करंट या वोल्टेज लीड या लैग कर रहा है. ओके, सो वी सॉ कि अगर मैं इंडक्टर का एग्जांपल लूं पहले, एंड देन वील गो ऑन टू कैपेसिटेंस आल्सो. सो सबसे पहले अगर मैं इंडक्टर का एग्जांपल लूं, तो इंडक्टर में वी नो दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बाय पाई बाय 2. वी ऑलरेडी सॉ दिस. ठीक है, क्या बोला मैंने? द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज ऑफ द अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट इन द इंडक्टर. सो अगर मेरे पास करंट ऐसे है, ये मेरा अगर करंट है, ये अगर मेरे पास करंट है, दिस इज ओमेगा टी माइनस 5. ठीक है, तो उससे 90 डिग्री अहेड इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. उसको मैं VL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, वी ऑलरेडी सॉ दिस कि करंट लैग्स बिहाइंड, बिकॉज रिमेंबर वो करंट में तब इंडक्टर के अक्रॉस करंट वाज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वेयर ओमेगा टी वाज द फेज ऑफ द वोल्टेज. ठीक है, सो बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ द करंट. सो करंट का फेजर अगर यहाँ पर है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर यहाँ पर होगा. एंड सिमिलरली कैपेसिटर में उल्टा हो जाएगा. कैपेसिटर में उल्टा रिलेशन था. सो कैपेसिटर में द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल लैग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री. तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं. तो यहां पर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल लैग, मतलब हम क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे बाय पाई बाय 2. तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये बन जाएगा. ठीक है, व्हाट अबाउट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज is has the same phase as current, right? Voltage across the resistance is simply IR, तो वो तो simply I naught R sin of omega t minus phi. तो यही मेरा इसी लाइन के अलॉन्ग मेरा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर हो जाएगा. ठीक है, alright. So let's also actually write this value, these values. Let's write that. So voltage across the inductor will be equal to the current, इसका जो पीक वैल्यू होगा वो कितना होगा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वुड बी करंट इनटू, जैसे रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस I naught XL, and then we have sin of, now the phase of the current is omega t minus phi, but the phase of inductor will be plus pi by 2. This is the way we will write the voltage across the inductor. तो ये जो वेक्टर है, इमेजिनरी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये I naught XL, करेक्ट. सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा? I naught XC, करेक्ट. उसका पीक वैल्यू विल बी करंट इनटू द रेजिस्टेंस की जगह क्या आता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो I naught into XC.
sine of, अब the phase of current is omega t minus phi, but the phase of the voltage across capacitor is pi by 2 behind, so minus pi by 2. Okay, so basically question में what can they ask? They can ask you peak value of current I naught, they can ask you voltage across inductor, capacitor और resistor. तो we know how to write all of these. Once you get I naught, and I naught के लिए formula था E naught by impedance, impedance का भी formula पता है. So basically we know how to calculate anything that can be asked in this question. ठीक है? All right, and voltage supply which was E naught sin omega t, वो कहाँ पर होगा? Voltage supply कहाँ पर होगा? That would be E naught sin omega t. तो x axis के साथ उसका angle with the x axis would be omega t. This will be E naught, and this angle with the x axis would be omega t. तो ही उसका y component would be E naught sin omega t, right? All right, so I can actually rotate this diagram. Just look at the four vectors. कौन से हैं? ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जिसका मैग्नीट्यूड वुड बी आई नॉट एक्स सी, एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड ई नॉट. तो इसको मैं जरा रोटेट कर सकता हूँ. इस पूरे वेक्टर को मैं ऐसे जस्ट मतलब आई कैन जस्ट टिल्ट माई हेड एंड सी दिस वे एंड ड्रॉ इट अगेन. तो आई जस्ट ड्रॉ दिस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस विच इज आई नॉट इंटू आर, उसका मैग्नीट्यूड. तो ये बन जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल और ये बन जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी, एंड यहां पर कुछ ई नॉट आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो ये चीज मेरा कभी कभार ऐसा भी फेजर डायग्राम अगर तुमको दिख जाए क्वेश्चन में तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. ठीक है, तो इस चार वेक्टर को बस ऐसे रोटेट करके बना दिया. ऑलराइट, दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? हाउ मच विल दिस एंगल बी? ये VR is omega t minus phi with the x axis, E naught is omega t with the x axis. दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? phi. ठीक है, ओके. देख लो, let's look at a question that came in JEE 2024. An LCR series circuit is subjected to a signal of 200 volts 50 hertz. इसका मतलब क्या है कि LCR मतलब मेरे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, वही RLC. So this signal of 200 volts refers to this voltage supply. ठीक है, अब ये जो 200 वोल्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ वोल्ट्स लिखा हुआ है 31.4 वोल्ट. सो एकदम ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट्स वाले चैप्टर में कहीं भी बोला गया कि सम वोल्टेज इज 200 वोल्ट्स, सम करंट इज 10 एम्पियर, दे ऑलवेज आर रेफरिंग टू आरएमएस वैल्यूज. बोला नहीं गया है क्वेश्चन में और बोला जाएगा भी नहीं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन दैट वी शुड नो. सो दिस रिफर्स टू आरएमएस वैल्यू. ये जो 31.4 वोल्ट्स दिया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 31.4, दैट इज आल्सो आरएमएस वैल्यू. ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए. ऑलराइट, सो यहां पर जो वोल्टेज सप्लाई आई कैन राइट इट एज E naught sin omega t. सो E naught by root 2 इज द आरएमएस वैल्यू व्हिच इज गिवन टू बी 200 वोल्ट्स. ठीक है, अच्छा, और क्या किया? 50 हर्ट्ज. हर्ट्ज मतलब यूनिट से पहचानना है अपने को कि वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. सो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. सो दिस विल बी 100 पाई रेडियन पर सेकंड. राइट, क्या और इंफॉर्मेशन दिया है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 31.4 वोल्ट. सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आई कैन राइट इट एज I naught into XL sin of करंट का फेज ओमेगा टी माइनस फाइव, बट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज पाई बाय 2 अहेड, राइट. सो I naught XL sin of ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2. अब ये जो पीक वैल्यू है उसका आरएमएस वैल्यू, दैट इज गिवन टू बी 31.4 वोल्ट्स. ठीक है, बस अभी सॉल्व करना है अपने को. सो पूछा गया है करंट इन सर्किट इज व्हाट. सो कौन से करंट की बात कर रहे हैं? आरएमएस वैल्यू. सो आरएमएस इज अगेन आई नॉट बाय रूट 2. इसी को मैं आई आरएमएस लिख लेता हूँ. एक्सएल को मैं ओमेगा एल लिख सकता हूँ. सो 100 पाई शुड बी इक्वल टू 31.4. सो आई आरएमएस का वैल्यू आ जाएगा. पाई को मैं 3.14 लिख सकता हूँ. ठीक है, ओ मैं सॉरी एल भूल गया. एक्सएल इज ओमेगा एल, राइट. आई फॉरगॉट टू राइट एल. इंडक्टेंस कितना? 10 मिली हेनरी. 10 into 10 power minus 3 ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू 31.4. ठीक है, अब आईआरएमएस का वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं. पाई को मैं 3.14 लिख सकता हूँ, तो ये 10 बन जाएगा. ये 10 कैंसिल. 100 into 10 power minus 3 is 1/10, उधर चला जाएगा. सो दिस विल बी 10 एम्पियर. सो आंसर वुड बी दिस. ओके, सो क्वेश्चन वैसे फेयरली सिंपल है, बट वी शुड नो द लैंग्वेज. 200 वोल्ट्स मतलब आरएमएस वैल्यू, 31.4 वोल्ट मतलब आरएमएस वैल्यू. करंट जो पूछा गया है आरएमएस वैल्यू. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023.
तो मेरे पास एक RLC सर्किट है, XL, XC एंड R का सब वैल्यूज दिया गया है, ये जो वोल्टेज सप्लाई का RMS वैल्यू भी दिया गया है एंड IRMS पूछा गया। सो I नॉट इज E नॉट बाय Z, ये पता है मुझे, तो इफ आई जस्ट डिवाइड बाय √2 ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे I नॉट बाय √2 IRMS बन जाएगा एंड E नॉट बाय √2 ERMS बन जाएगा डिवाइडेड बाय Z। बस अभी अपने को कैलकुलेट करना है। सो IRMS का वैल्यू वुड बी, ERMS तो 200 दिया गया है और Z का क्या था फॉर्मूला, R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। All we have to do is substitute. So R² is 100, so 100 square plus XL 200 minus XC 100, तो अगर 100 square, तो ये बन जाएगा 200√2 डिवाइडेड बाय 100√2, तो 2√2 एम्पियर। ठीक है, सॉरी 2 एम्पियर। ऑलराइट, सो माय आंसर वुड बी 1। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। मेरे पास एक RLC सर्किट है, द वोल्टेज सप्लाई इज 210 sin 3000 t, ये दिया गया है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस सब दिया हो गया। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज आस्किंग फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। सो phi का वैल्यू पूछा गया है। सी, वोल्टेज सप्लाई इज E नॉट sin omega t एंड द करंट इज I नॉट sin of omega t minus phi। तो दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस कितना है? इसका फेज ओमेगा t है, इसका ओमेगा t minus phi है, सो phi इज द फेज डिफरेंस, राइट? सो tan phi का फॉर्मूला क्या था? tan phi was XL minus XC divided by R। सो XL का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा L, ओमेगा इज 3000, सो ओमेगा L minus XC is 1 over omega C divided by R। तो ये कैलकुलेट करना है अपने को। सो लेट्स डू इट। 3000 into 10 मिली हेनरी, 3000 into 10 into 10 power minus 3 minus 1 over omega C, 3000 into 25 माइक्रोफैरेड। सो नीचे 3000 है into 25 माइक्रोफैरेड 10 raised to minus 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम। ठीक है, तो अपने को बस कैलकुलेशन करना है। सो ये 1000 और ये 10 raised to 3 कट गया, तो ऊपर 30 बचेगा, माइनस ये 1000, ये 10 पर माइनस 3 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1000 आ जाएगा ऊपर, तो 30 माइनस 1000 by 25, सो 100 by 25 is 4, सो 40 by 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 50, 330, 90 minus 40 is 50 divided by 300, so 1/6. So 1/6 is how much? It will be around 0.16 something, right? 0.16 1666, approximately 0.17, closest answer क्या 0.17। ये tan phi का वैल्यू दिया है 0.16, so closest answer is tan inverse 0.17। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन था, ये वाला फॉर्मूला देख लो। नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जहां पे कैपेसिटर नहीं है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेजिस्टर ऑफ 100 pi ohms एंड एन AC वोल्टेज सप्लाई ऑफ 100 pi volts एंड 50 हर्ट्ज। तो कैपेसिटर नहीं, मतलब अगर डायग्राम ड्रॉ करो तो एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है एंड कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, सो इसका 100 pi volts दिया। अगर बोला गया AC की वोल्टेज सप्लाई 100 pi volts, मतलब दे आर गिविंग द RMS वैल्यू, ऑलराइट, दैट इज द कन्वेंशन। सो ERMS इज 100 pi volts, ऑलराइट, तो इसका पीक वैल्यू हो जाएगा √2 टाइम्स 100 pi volts, ऑलराइट, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा? 2 pi into frequency which is 50 hertz, this will become 100 pi radian per second। ओके, तो पूछा गया है मैक्स करंट, तो इसमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो LCR में यूज करते हैं। द ओनली थिंग इज दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी सेट टू 0, क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं है। ओके, सो XC का वैल्यू 0 हो जाएगा अपने फॉर्मूला में। तो Z का फॉर्मूला क्या था? R² प्लस XL माइनस XC था, तो XC तो 0 हो गया, इतना बन जाएगा बस। सो R का वैल्यू 100 pi ohm, सो 10⁻⁴ pi squared प्लस XL का वैल्यू कितना है? XL इज ओमेगा 100 pi into L, ओमेगा into L, करेक्ट, तो वो भी 100 pi, सो दिस कैन आई जस्ट से into 2 बिकॉज़ दोनों का वैल्यू सेम है,
100 पाई, एक्सएल एंड आर का वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स 100 पाई ओम्स, ओके। और क्या पूछा गया, हो गया, अभी मैक्सिमम करंट निकालना है। सो मैक्सिमम करंट आई नॉट वुड बी ई नॉट बाय जेड, सो √2 into 100 पाई डिवाइडेड बाय √2 into 100 पाई विच इज 1 एम्पियर, ओके। देख लो, अब एक ऐसा सवाल करते हैं जो कि जे एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट इट हैड कम इन जेईई मेंस 2025. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बोला गया है कि ऐसा सर्किट है एंड वी हैव 2 ब्रांचेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू सेम है, एंड ये कैपेसिटेंस है, एंड अगेन दोनों का वैल्यू सेम है, ऑलराइट। एंड इनपुट वोल्टेज है मेरे पास एज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, एंड ए एंड बी 2 टर्मिनल्स है। The question is saying that the phase difference between the input voltage and this quantity, which is VB minus VA, is 90 degrees. So for this to hold true, what is the angular frequency of the input voltage? So it's a very nice question and honestly एकदम JEE advanced level का question है। Let's take a look at कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों ब्रांचेस में करंट जो है वो सेम होने वाला है, बिकॉज दोनों ब्रांचेस में RC सीरीज में है, एंड दोनों रेजिस्टेंसेस दोनों कैपेसिटेंस का वैल्यूज भी सेम है, सो दोनों ब्रांचेस में करंट सेम होने वाला है। नाउ कैन यू सी कि VA, if I just label this point as D, then can you see that VA minus VD is the voltage across the capacitor, correct? And VB minus VD इसके अक्रॉस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। सो बेसिकली जब ये बोल रहा है कि VB माइनस VA करना है हमें, वी बेसिकली वांट टू डू VR माइनस VC, ठीक है। अच्छा, अब ये जो VR माइनस VC मुझे करना है, कैन यू सी दैट देयर इज अनदर रिलेशन दैट वी हैव फॉर VR एंड VC। कैन यू सी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR ही होगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है और नीचे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, दोनों के अक्रॉस VR ही होगा। क्यों? बिकॉज करंट सेम है, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो वोल्टेज भी सेम रहेगा। तो कैन यू सी VR प्लस VC वुड बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, करेक्ट। तो क्या बोला गया है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज 90 डिग्रीज। तो अगर मैं फेजर बनाऊं दोनों का, तो ये बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज का फेजर, अगर इनपुट वोल्टेज ऐसे है, साइन ओमेगा टी को इस ब्रांच में मान लिया मैंने, देन VB माइनस VA कुछ ऐसे 90 डिग्री हो गया। तो अगर दो फेजर्स है, मतलब दो वेक्टर्स है which are perpendicular to each other, then the dot product should be 0. So can I say VR minus VC, अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, डॉट प्रोडक्ट विथ VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर, these are the phasers, this should be 0. A plus B minus A plus B into A minus B मतलब कितना? मतलब VR का मैग्नीट्यूड एंड VC का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, दीज आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड, दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर मतलब एम्पलीट्यूड्स। तो एम्पलीट्यूड्स इक्वल है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज का, मतलब I0 इंटू R शुड बी I0 इंटू XC, मतलब R एंड XC का वैल्यू इक्वल। तो मतलब रेजिस्टेंस कितना है 100 किलो ओम्स, सो 100 10⁵ शुड बी XC मतलब 1 ओवर ओमेगा C, सो 1 ओवर ओमेगा इंटू C इज 10 ये पिको फैरेड मतलब 10⁻12, तो इंटू 100 मतलब 10⁻10, तो ओमेगा का वैल्यू देखो कितना बन जाएगा 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, सो x का वैल्यू 5, ओके। देख लो। नाउ AC सर्किट्स वाले चैप्टर में जो वोल्ट मीटर होते हैं या एम मीटर होते हैं, उनका जो रीडिंग्स है
दे ऑल गिव RMS वैल्यूज, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ऐसा है, सपोज एंड आई अटैच अ वोल्टमीटर अक्रॉस द कैपेसिटर एंड आई आस्क यू कि कितना रीडिंग होगा। सो सपोज सब कुछ पता है अपने को, तो आई कैन गेट फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट एज E नॉट बाय Z, वेयर Z इज R स्क्वायर प्लस XL विच इज ओमेगा L माइनस XC का स्क्वायर। तो तुमको ओमेगा दिया जाएगा, रेजिस्टेंस L C सब दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे तुमको Z का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके I नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वोल्टमीटर रीडिंग कितना होगा? द वोल्टमीटर रीडिंग would be I naught into XC. This is the voltage across capacitor का peak value, but we know that the reading is RMS value, ठीक है। सो XC का वैल्यू तुमको पता होगा, तो I naught into XC by √2 करके तुमको वोल्टमीटर रीडिंग आ जाएगा। ये एग्जांपल बता रहा हूँ। If the voltmeter is across inductor, I naught into XL by √2 and so, ठीक है। देख लो। Now let's look at the power supplied. So, मेरे पास RLC सर्किट है, तो उसमें पावर सप्लाइड कितना होता है? कोई भी वोल्टेज सप्लाई वो कितना पावर सप्लाई करता है? EMF इनटू करंट, दिस इज द पावर सप्लाइड, करेक्ट। तो ये कितना बन जाएगा? E नॉट साइन ओमेगा t इनटू करंट हो जाएगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 5, राइट। सो EMF voltage supply into current. This is by power supplied by the voltage supply. Correct. अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं, तो एवरेज ओवर वन साइकिल, वन टाइम पीरियड। तो ये साइन इसको मैथमेटिकली क्या करना पड़ेगा? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के दो टर्म सेपरेट करके आएंगे, एंड देन यू कैन टेक इंडिविजुअल एवरेज एंड इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई जस्ट राइट द फाइनल फॉर्मूला. इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू E नॉट I नॉट cos phi by 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ मैंने मैथमेटिकल मतलब वो डेरिवेशन स्किप कर दिया, बट इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के एवरेज ले लेना। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, E नॉट बाय √2 इंटू I नॉट बाय √2 इंटू cos phi. व्हाट इज E नॉट बाय √2? ERMS. व्हाट इज I नॉट बाय √2? IRMS इंटू cos phi. This is called the average power. This is equal to the average power. ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ठीक है। एंड cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर, जस्ट एक नाम है, बिकॉज इट अपीयर्स इन द पावर एक्सप्रेशन, cos phi अपीयर्स, ठीक है। सो एवरेज पावर इज गिवन बाय ERMS into IRMS into cos phi, ठीक है। phi का वैल्यू tan phi was XL minus XC by R. I can actually draw a triangle here. tan phi is XL minus XC divided by R, and इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा इस ट्रायंगल का क्या होगा? R square plus XL minus XC the whole square, but that is nothing but impedance, ठीक है। so cos phi का वैल्यू बन जाएगा R by Z. All right. Now I can also simplify this a little further. I can write ERMS as, see I know I naught is E naught by Z. So अगर √2 से दोनों तरफ डिवाइड करो तो IRMS is ERMS by Z. So ERMS को मैं IRMS into Z लिख सकता हूँ, into IRMS into cos phi which is R by Z. तो Z कट के अल्टीमेटली पावर का दूसरा एक्सप्रेशन इज I squared R, पर I is IRMS, ठीक है। Alright, so the average power is equal to IRMS squared R. Alright, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2024. मेरे पास एक RLC सीरीज सर्किट है, ये वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो मतलब 220 वोल्ट क्या दिया हुआ है? RMS वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, रेजिस्टर का वैल्यू दिया है, पावर फैक्टर इज cos phi was R by Z, राइट। और आई कैन यूज tan phi वाला फॉर्मूला, XL minus XC by R. एनी फॉर्मूला, दोनों कोई भी जो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन एनी केस अपने को XL एंड XC कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए। सो XL का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा L. सो ओमेगा L मतलब ओमेगा क्या है? 2 पाई इंटू द फ्रीक्वेंसी इंटू L विच इज 100 by pi मिली हेनरी,
ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 into 50 is 100, 100 into 100 is 10 raised to 4 into 10 power minus 3 is 10 ohms. XC का वैल्यू 1 over omega C, so omega is 2 pi into 50 into capacitance 10 raised to minus 3, मतलब ऊपर 10 raised to 3 चला जाएगा divided by pi, तो pi भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। so pi pi कट गया, 2 into 50 is 100, तो ये भी 10 हो। सो बेसिकली XL एंड XC आर इक्वल, ये तो रेजोनेंस वाला कंडीशन हो गया, राइट। सो दिस विल बिकम 0, सो फाई का वैल्यू इज 0, सो cos फाई कितना हो जाएगा, cos 0 इज 1, सो माय पावर फैक्टर इज 1। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक R एंड कैपेसिटेंस है, इट्स ओनली एन RC सर्किट, इट्स नॉट RLC। So RC is just a special case of RLC that we've already studied with XL set to 0। तो बहुत ही सिंपल है, अगर इंडक्टर नहीं है सर्किट में तो XL का वैल्यू 0 कर देना, अगर कैपेसिटर नहीं होगा सर्किट में, मतलब RL सर्किट होगा मेरे पास, तो कैपेसिटर का जो XC है उसको 0 सेट कर देना, ठीक है। सो इस केस में मेरे पास RC है, तो मैंने XL मेरे 0 सेट कर दूंगा, जो भी फॉर्मूले में जहां पे भी XL आएगा। पूछा क्या गया है, पावर पूछा गया है, पावर वाला एवरेज पावर अंडरस्टूड, तो वो क्या चाहिए मुझे, ERMS IRMS cos phi, ठीक है। और आई कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला IRMS स्क्वायर इंटू R, ये भी यूज कर सकता हूँ ना, दिस फॉर्मूला इज यूजफुल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि IRMS का वैल्यू कितना हो जाएगा, I नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई Z। अब Z के फॉर्मूला में क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, करेक्ट। तो XL का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0, ये बन जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। E नॉट का वैल्यू दिया गया है 8√2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब कितना दिया है, 4, सो 4 स्क्वायर प्लस XC मतलब 4√3 का स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इंटू 3, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 48 मतलब 64, तो स्क्वायर रूट में 8 बन जाएगा, तो √2 बचेगा। ये I नॉट का वैल्यू, सो IRMS वुड बी I नॉट बाई √2 मतलब 1 एम्पियर, करेक्ट। सो हो गया, मेरा काम हो गया, IRMS स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 4, सो ये बन जाएगा 4 वोल्ट्स। ओके, सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट सेट XL का वैल्यू टू बी 0। यहाँ पर एक चीज है, अगर अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, तो अगर cos phi निकालना होगा तो मेरे को tan phi का वैल्यू XL माइनस XC बाय R रखना होगा, तो 0 माइनस XC इज 4√3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा -√3। सो tan phi -√3 है, इसका मतलब सो phi कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। सो phi का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan phi is √3 is phi is 60 डिग्री, राइट। सो phi का वैल्यू -60 डिग्री हो जाएगा इस केस में, बिकॉज ये नेगेटिव है, ठीक है। सो देन यू कैन यूज cos phi का वैल्यू, cos में तो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, एनीवे यू कुड हैव डन दैट एज वेल, ठीक है। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि मेरे पास जो करंट वर्सेस ओमेगा है, जो ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड द विड्थ ऑफ द ग्राफ। सो सबसे पहले इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पीक वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमा ऑफ दिस पीक करंट, मैक्सिमम करंट कितना है RLC सीरीज में, द मैक्सिमम करंट comes out to be equal to E नॉट divided by the minimum impedance which is R, करेक्ट। रेजोनेंस पे impedance का वैल्यू R है, राइट। सो दिस इज E नॉट by R। So you locate the points where the current is E नॉट by √2R, ठीक है, and then you note down उनके angular frequencies। ये वाला तो ओमेगा नॉट है, omega 1 and omega 2 are the two angular frequencies which will produce a current of E naught by √2R. So we define the bandwidth or the width of the graph as omega 2 minus omega 1, ठीक है। So जितना ज्यादा width होगा उतना ज्यादा ग्राफ ऐसे स्प्रेड आउट होगा। So quality factor is defined as omega naught divided by delta omega. So omega naught, the resonance frequency, angular frequency divided by the width, and this comes out to be equal to omega naught L by R. मतलब डेल्टा ओमेगा का वैल्यू comes out to be equal to L by R. ये कैलकुलेशन कर सकते हैं
करने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन डिराइव दिस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि करंट का फॉर्मूला है मेरे पास ई नॉट बाय जेड, जेड इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी द होल स्क्वायर। तो उसका वैल्यू ई नॉट बाय रूट टू आर के बराबर करके यू विल गेट दिस डेल्टा ओमेगा का वैल्यू एंड दिस विल कम आउट टू बी ओमेगा नॉट एल बाय आर। ठीक है, सो क्वालिटी फैक्टर क्या बोलता है कि जितना ज्यादा शार्प है ग्राफ, द शार्पर द ग्राफ, क्वालिटी फैक्टर इज मोर। शार्पर मतलब जितना विड्थ कम है उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन तो आ ही सकता है, क्वांटिटेटिव मतलब फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है, बट एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। सो ओमेगा नॉट सेम है, किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो इसका जो विड्थ है, वी कैन सी दिस इज अ शार्पर ग्राफ कंपेयर टू दिस, तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ ग्राफ 1 विल बी मोर देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ ग्राफ 2। ऐसे क्वालिटेटिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वांटिटेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। तो क्वालिटी फैक्टर पे क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। सो लेट्स डू वन ऑफ देम। तो RLC सीरीज में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है। सो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा नॉट L by R। व्हाट वाज ओमेगा नॉट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी व्हिच वी नो इज 1 over root LC। तो ये बन जाएगा रूट L by C into 1 by R। करेक्ट, 1 over root LC में एक L कट गया, रूट L बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। बस अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो L का वैल्यू तो 1 है, कैपेसिटेंस कितना है 6.25 माइक्रोफैराड। सो 6.25 और ऊपर 10⁶ आ जाएगा इंटू 1 by R, तो 1 by 100। ठीक है, 6.25 को मैं 25/4 लिख सकता हूँ, तो 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो 4 का स्क्वायर रूट 2, 10⁶ का 10�3, 25 का 5 इंटू 1 by 100, तो ये 10 बचेगा, 20/5 इज 4। सो माई आंसर इज 4। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। देख लो, लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पे करंट दिया गया है, उसका RMS वैल्यू पूछा गया है, बट द करंट इज इन दिस फॉर्म। एक साइन टर्म है, एक कॉस टर्म है। सो इसको दो तरीके करने का, एक मेथड मैं बताता हूँ जो विच यूजेस फेजर्स। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास करंट है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IA sin ओमेगा t प्लस IB। अब मैं कॉस को कैन आई राइट इट एज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2, ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं, IA sin ओमेगा t, if it is if I take this as omega t, तो ये IA ऐसे आ जाएगा, and IB sin of omega t plus π/2 90 degree ahead of IA, correct? omega t plus π/2, so this is 90 degree ahead of this। तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। So this is the peak value of the resultant। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका पीक वैल्यू ये है। सो RMS वैल्यू कितना बन जाएगा? डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, तो दिस इज मेथड 1। अब सेकेंड मेथड भी बताता हूं, पहले ये मेरे को रब करने दो। सेकेंड मेथड देखते हैं। हियर वी गो टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज RMS। सो व्हाट इज RMS? RMS मतलब R stands for root, M stands for mean, S stands for squared। So सबसे पहले मुझे करंट को अगर मुझे RMS निकालना तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका मीन लेना पड़ेगा। दिस सिंबल डिनोट्स मीन, मीन मतलब एवरेज, एंड फिर मुझे रूट लेना पड़ेगा। ऐसे ऑपोजिट में जाते, पहले स्क्वायर करते फिर मीन फिर रूट। करेक्ट, दिस इज माई IRMS। ऑलराइट, तो अगर मुझे IRMS यहाँ पे निकालना तो सबसे पहले मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। So this will become IA square sin square omega t plus IB square cos square omega t plus 2IA IB sin omega t cos omega t, उसको मैं sin 2 omega t लिखता हूँ। ठीक है, 2 sin x cos x is sin 2x। Alright, now I have to take the average of this, right? So sin square का एवरेज कितना होता है? हाफ। sin square goes from 0 to 1, cos square also goes from 0 to 1 in one time period। So इन दोनों का एवरेज हाफ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा IA square by 2 प्लस IB square by 2 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, you have sin 2x का अगर एवरेज देखो ओवर वन पीरियड, that will be 0। क्यों? Because sin 2x will go from -1 to 1 periodically, तो उसका एवरेज कितना बन जाएगा? 0। सो देयरफॉर इस टर्म का एवरेज 0 हो जाएगा, एंड बचेगा ये दो टर्म्स का एवरेज
which is this, and then we have to take square root, and this is exactly what we got with method 1 as well. All right, so phasor wala method is faster, but this method is a general method that you can use in other situations also, जहाँ पे phasor may not be possible. एक example मैं बताता हूँ अभी. Let's look at a question जहाँ पे मेरे पास current इस तरीके से दिया गया है. So this is a DC current. DC मतलब एक constant value है, and ये मेरा alternating part है. अब इस पूरे current का मुझे RMS value निकालना है. Okay, so let me just write it this way: I1 plus I2 cos of omega t plus phi. ऐसे लिखो चलेगा, so that थोड़ा सा अपन एक general तरीके से solve कर लेते, फिर बाद में value substitute करेंगे. So I1 is 5√2, I2 is 10, omega is 650 pi and phi is pi by 6. All right. तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, RMS निकालने के लिए पहले I have to square this. So मेरे पास आ जाएगा I1 square plus I2 square cos square plus 2 I1 I2 cos of omega t plus phi. Right. Now I have to take the average. So average हो जाएगा, I1 square तो constant है, तो उसका average उसी वही value हो जाएगा, प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर. अभी कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, हाफ ओवर वन टाइम पीरियड. तो ये बन जाएगा I2 स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस का एवरेज. दिस एंटायर टर्म इज गोइंग टू गो फ्रॉम -1 to 1 ओवर वन टाइम पीरियड, तो उसका एवरेज कितना बन जाएगा, 0. तो बचेगा इसका एवरेज 0. तो बेसिकली नाउ I स्क्वायर का एवरेज इज दिस, एंड देयरफॉर RMS वुड बी इसका स्क्वायर रूट, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2. ठीक है, तो अब कैलकुलेशन वैल्यूज डाल देते हो. I1 स्क्वायर मतलब 5√2, तो वो बन जाएगा 25 into 2 50. I2 स्क्वायर इज 100 by 2 50, तो ये बन जाएगा 10 एम्पियर. ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट LC ऑसिलेशंस. तो यहां पर मेरे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है. there is no voltage supply, it's just an inductor and a capacitor. ठीक है, तो सपोज किसी इंस्टेंट पे कुछ चार्ज है इस कैपेसिटर पे Q माइनस Q, एंड लेट्स से कोई करंट जा रहा है इस तरीके से. सो आई वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द चार्ज. तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट राइट लूप लॉ. इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस Q बाय C, C इज द कैपेसिटेंस, और इसके अक्रॉस माइनस LdR/dt शुड बी 0. करेक्ट. इसके अक्रॉस कितना चेंज होगा वोल्टेज, माइनस Q by C, and then across the inductor minus LdR/dt. Now I can write current as dQ by dt. ये तो पता ही है मुझे. So मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस Q by C माइनस L d2Q by dt square is 0 because current dR/dt will become double derivative of current. So I'll have d2Q by dt square is equal to minus Q by LC times is equal to minus Q by LC. Correct. Now this is nothing but SHM, because I can write SHM मतलब the double derivative is proportional to the function. Double derivative of Q is proportional to Q with a negative sign. इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. तो ये तो SHM की तरह ही हो गया. SHM में acceleration was proportional to the displacement and acceleration is double derivative of displacement. So यहाँ पर मैंने 1 over LC को ओमेगा कर दिया. So ओमेगा का वैल्यू 1 over LC आ गया. So this looks very familiar to the resonance frequency of RLC circuit, but it has nothing to do with that. यहाँ पे RLC नहीं, ठीक है. तो यहाँ पर this is the angular frequency of SHM of Q. So Q as a function of time will come out to be some A sin omega t plus phi. Okay, so charge is some A is some value of the charge. उसको कुछ चाहिए तो Q naught बोल दो. Just amplitude sin of omega t plus phi. Phi is just a phase constant which is determined by t equal to 0 पे कितना चार्ज होगा, and omega का वैल्यू ही है. एंड करंट चाहिए तो अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, dQ by dt कर देंगे. ऑलराइट. तो बेसिकली द होल पॉइंट इज यहाँ पर चार्ज विल ऑसिलेट, करंट विल आल्सो ऑसिलेट. ऑसिलेट मतलब टाइम के साथ इट विल बिकम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. दिस चार्ज Q इज ऑन द लेफ्ट प्लेट. ठीक है. सो वो पॉजिटिव नेगेटिव पीरियडिकली होते जाएगा, एंड करंट का भी डायरेक्शन चेंज होते रहेगा. मैंने करंट को पॉजिटिव इस सेंस में माना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, बट करंट विल आल्सो बी सम साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन. करेक्ट. तो वो भी करंट का भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा पीरियडिकली. तो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट सेंस में करंट आएगा. ठीक है. ओके, सो यहाँ पर वन थिंग इज दैट वी डोंट हैव अ रेजिस्टेंस, राइट. तो इसका मतलब देयर इज नो एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम द सर्किट. इसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो व्हाट इज एनर्जी?
कैपेसिटर में एनर्जी q²/2c, ये तो पता है मुझे। एंड इंडक्टर में कितना एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li², ये भी पता है। दिस इज अ कांस्टेंट ऑलवेज बिकॉज देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो ये चीज जनरली क्वेश्चंस में यूजफुल होता है। ऑलराइट, एनर्जी कंजर्वेशन, वील सी, देख लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसे एलसी ऑसिलेशन में, लेट्स टॉक अबाउट कि कब मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम चार्ज होगा। So what happens is, जो मेरे पास चार्ज था वो एक ऐसे चलता, करंट was dq/dt, correct? So if I want the maximum current, if I want maximum current, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव, करंट का डेरिवेटिव शुड बी 0 एंड करंट इज व्हाट dq/dt। सो इसका मतलब करंट का डेरिवेटिव 0 मतलब d2q/dt² 0, बट d2q/dt² इज प्रोपोर्शनल टू q, इसका मतलब चार्ज इज 0। तो जब चार्ज 0 होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो। फॉर मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर द करंट वुड बी 0। इट्स बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, ½ Li² इज द एनर्जी इन द इंडक्टर। तो जब ½ Li² मैक्सिमम होगा तो q²/2c 0 बन जाएगा, एंड जब q²/2c मैक्सिमम होगा तब ½ Li² 0 बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023। मेरे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस 75 मिली हेनरी दिया, कैपेसिटेंस 1.2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। इफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.7 माइक्रोकूलम, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज हाउ मच, ये पूछा गया। सो जब मैक्सिमम चार्ज है, सो व्हेन Q is 2.7 माइक्रोकूलम, then current will be how much? 0. We know that कि मैक्सिमम चार्ज पे करंट 0 हो जाएगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, सिर्फ q²/2c हो जाएगा। सो 2.7 into 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, राइट? q² डिवाइड बाय 2c, c is 1.2 माइक्रोफैराड, तो इसलिए 10⁻⁻⁶ आ गया। So this is the energy of the system. This should be the also the energy when the current is maximum. करंट मैक्सिमम होगा तब चार्ज कितना होगा, 0। तो पूरा जो एनर्जी होगा वो किस में स्टोर्ड होगा, इंडक्टर में। सो बन जाएगा ½ into L is 75 into 10⁻³ मिली हेनरी इंटू I max का स्क्वायर। ठीक है, सो जब करंट इज मैक्सिमम देन चार्ज इज 0, सो द एंटायर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एंड वी हैव डन एनर्जी कंजर्वेशन। बस अभी अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें 10⁻⁻⁶ कट जाएगा, तो 2.7 into 2.7 डिवाइड बाय 2 into 1.2 into 10⁻⁻⁶, ये 2 आ जाएगा इधर, into 2 डिवाइडेड बाय 75 एंड 10⁻³ नीचे, मतलब 10⁻³ ऊपर। दिस इज I max का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर लेते अपन, ये 2 कैंसिल हो गया, एंड 1.2 into 75, इसको कुछ कर सकते हैं क्या, 1.2 into 75, ये 10⁻³ है ऊपर, राइट? तो वो हटा देता हूं और नीचे में 10⁻³ लिख लेता हूं, 1000। सो I max का स्क्वायर बन जाएगा 2.7 का स्क्वायर ऊपर, और नीचे 1.2 into 75 into 1000। तो 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 12 into 75 into 100, ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे को स्क्वायर रूट लेना है इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। और 12 into 75 को कुछ स्क्वायर है क्या, ये 12 को मैं 4 into 3 लिखता हूँ, और 75 को 25 into 3 लिखता हूँ, तो सब स्क्वायर बन गया ना। तो I max देखो कितना बन जाएगा, 2.7 का स्क्वायर रूट इज 2.7, 4 into 25 100, तो उसका 10 बन जाएगा, 100 into 100, इसका भी 10 बन जाएगा, एंड 3 into 3 का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.9 डिवाइड बाय 10 into 10, तो दिस विल बी 9 डिवाइड बाय 1000 एम्पियर, सो 9 मिली एम्पियर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं फटाफट वो भी मैंने बता दिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपन एनर्जी कंजर्वेशन करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेट्स लुक एट ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इट इज अ सेटअप टू इंक्रीज और डिक्रीज इन AC वोल्टेज। सो सपोज यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट वोल्टेज है, and that voltage supply is connected around a coil that is wrapped around a soft iron core. So what iron does is it increases the magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट जनरेट हो रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगे। You can imagine this is like a solenoid, and these magnetic field lines will form closed loops by going into the other coil. ठीक है,
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फॉर्म क्लोज लूप्स बाय गोइंग इनटू द अदर कॉइल. तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल व्हिच इज कनेक्टेड टू द इनपुट, एंड ये मेरा सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं व्हिच इज कनेक्टेड और जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं. ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये जो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू गो फ्रॉम वन कॉइल इनटू द अदर, फ्रॉम वन सोलेनॉइड इनटू द अदर. ठीक है, इन रियलिटी थोड़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एस्केप भी कर जाते हैं, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट एन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑल द फील्ड लाइंस आर गोइंग, जो भी इसके थ्रू जा रहे हैं वही इसके थ्रू भी जा रहे हैं. सो कैन आई से दैट द इनपुट वोल्टेज would be equal to the rate of change of flux, right? Or I can write input, loop law लिख सकता हूँ, input minus L di by dt is 0. So L di by dt मतलब वो inductance आ गया वहाँ पर. What I can do is I can write it as d phi by dt in the primary coil. ऐसा लिख सकता हूँ मैं, right? L di by dt भी वो rate of change of flux ही था, वहीं से आया था L di by dt. So input voltage is d phi by dt across this. तो d phi by dt क्या होगा? Flux, let phi be the flux per turn. वो कितना हो जाएगा? Magnetic field into area, right? So let phi be the flux per turn. तो total flux through the primary coil कितना हो जाएगा? Remember we have to multiply by the number of turns, right? ये हमने EMI chapter में पढ़ा है properly. So the input voltage is N1 into d phi by dt. And similarly the output voltage would be same जो flux इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, मतलब same field lines जो इसमें जा रहे हैं वही इसमें जा रहे हैं. तो हर टर्न के थ्रू जितने field lines इसमें थे वही हर टर्न में field line same है. So phi same है, flux per turn same है दोनों coils में, पर यहाँ पर N2 turns है, तो it will be N2 into d phi by dt. And therefore the output voltage divided by input voltage would be N2 by N1. ठीक है, where N2 is the secondary coil का number of turns, N1 is the primary coil. Alright, so इस ratio से we can increase the output or decrease the output just by increasing N2 or decreasing N2. मतलब if N2 is greater than N1, so obviously output will be more than input, so it is called step-up transformer. And if N2 is lesser than N1, it is called step-down transformer. So this is a very nice way of increasing or decreasing the input voltage. ठीक है, depending on अपने का output कितना चाहिए. Now in an ideal transformer, we also assume that there is no power loss. So जितना input power है उतना ही output power है. So input power कितना हो जाएगा? Voltage into current in the primary coil बोलता हूँ, इस primary coil को IP बोल रहा हूँ, ठीक है? This should be equal to output voltage into the current in the secondary coil. Voltage into current is power. So secondary coil divided by primary coil का ratio, current का भी ratio आ गया मेरे पास. Now this will be the inverse ratio of this. ठीक है, all right, because there is no power loss, so input power is equal to output power. All right, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रांसफार्मर पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. देखते हैं. Let's look at a question that came in JEE 2024. Primary side of a transformer is connected to 230 volts 50 hertz supply. ठीक है, so मेरे पास primary side है and ये मेरे पास secondary है. Turn ratio of the primary to secondary is 10:1. So N1 या N2, so N1 by N2 is 10. ठीक है. Load resistance connected to the secondary. तो यहाँ पे एक resistance connect कर दिया, कितना 46 ohms. The power consumed is how much? If I can get the voltage across this, अगर इसके across voltage निकल गया, जो मेरा पास जो हमने output voltage बोला था, तो इसके across power भी निकल जाएगा. कितना निकल जाएगा? Output V square by resistance. V square by R होता है power. So let's calculate output. वो तो बहुत ही simple है, because I know output divided by input is N2 by N1. So therefore output voltage would be input divided by input का value कितना है 230. So 230 divided by 10. N2 by N1 is 1 by 10. So there will be 23 volts. ये सब actually RMS values है, okay? And power across a resistor भी RMS value ही आता है. We know power across a resistor is IRMS squared into R. इस तरीके से हम लिख सकते हैं AC सर्किट्स में, राइट? एंड IRMS को VRMS by R लिख सकता हूँ, तो यही बन जाएगा. VRMS मतलब दिस आउटपुट वोल्टेज का RMS, which is exactly what we are talking about. This is all it's RMS value because output input is also RMS 230 volts. ठीक है. Okay, so ये बन जाएगा
23 वोल्ट आ गया ना, तो हो गया। So 23 into 23 divided by 46. 23 by 2 is 11.5 watts. So this is the answer. देख लो। Now let's look at a question जहां पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है। देखो क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%। इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी इज बेसिकली डिफाइंड एज द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर इज लेसर देन इनपुट पावर बिकॉज 80% एफिशिएंसी। ठीक है, ये द रीजन फॉर पावर लॉस कैन बी मेनी थिंग्स। सो आई वुड सजेस्ट कि इन अ रियल ट्रांसफॉर्मर देयर इज सम पावर लॉस। आइडियल में हमने अज्यूम किया था कि इनपुट एंड आउटपुट इक्वल है, बट रियलिटी में आउटपुट इज ऑलवेज लेसर देन इनपुट, एंड उसके जो रीजंस हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, एनसीईआरटी में कहाँ पे पावर लॉस का पॉसिबिलिटी है ट्रांसफॉर्मर में, वो एनसीईआरटी वाले सेक्शन से पढ़ लेना। ओके, सो एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर में इनपुट पावर। तो क्या बोला गया है, द ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी ऑफ 80% वर्क्स एट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट। मतलब ये प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट्स देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज हाउ मच। सो इनपुट पावर 4 किलोवाट्स है, तो उसका 80% मतलब 0.8 इंटू 4000 वोल्ट्स, दिस इज माई आउटपुट पावर। एंड आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। इतना ही करना है अपने को। ठीक है, तो यू शुड जस्ट नो एफिशिएंसी का मतलब क्या, आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट दिया गया है 4 किलोवाट्स, इसका 10 वोल्ट का कुछ यूज नहीं। इनपुट दिया गया है इज इक्वल टू 0.8 इंटू दैट शुड बी द आउटपुट पावर। हो गया, तो कैलकुलेशन देखो कितना बन जाएगा, 0.8 इंटू 4000 मतलब 8 इंटू 400 कर दो डिवाइड बाय 240। सो 40/3 मतलब 13.333। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है, बस ये पता होना चाहिए। देख, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट्स कर लिया है स्टार्ट टू एंड, सारा थियरी, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड लॉट्स ऑफ PYQs। अब तुम्हारे ऊपर है लास्ट फ्यू इयर्स के PYQs कर लेना। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेजॉरिटी इनफैक्ट ऑल ऑफ देम तुम्हारे से हो जाएंगे। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू एट द टॉप।